It's Friday, the Indian stock markets have closed, and it's been a fantastic Friday for the stock markets. 30 lakh crore that was lost earlier during the week has been completely recovered. The benchmark Sensex at an all-time high, the Nifty also much above what had happened earlier during the week. But what a week it has been for our markets. The exit polls, the reaction, and then the actual result. And that big allegation that was leveled by the Congress party, by Rahul Gandhi, that it is the biggest scam of all and that 30 lakh crore have been lost. And with me at the Business Today newsroom to bring you some of those key elements of what has really been happening in our markets is our entire team. But the real numbers first, and I'm going to start with you, Sakshi. How did the markets close this Friday? So 76,000, 738, that's the all-time high level that we have touched as far as the Sensex is concerned. Even the Nifty, it came just 20 points within that all-time high level as well. For this week, this is the best week for 2024. Despite all that sell-off that 2024 का सबसे बढ़िया हफ्ता. बढ़िया हफ्ता, 3.8% of a gain on the Sensex and 3.4% gain on the Nifty is what we have registered. Okay, and what does this mean for all those people who might have lost a lot of money on Tuesday, because that was really a shock. It was terrible Tuesday. It reminds me of what has happened several times in the past around election outcomes, 2004, 2009 for example. But have all of them recovered their money? So Siddharth, we kept on saying on our channel that do not take any untoward decision. Do not be a hero, buy into the dip, do not be, in panic and sell anything. So those who held on to their investments, they're back at the pre-exit poll level. So they're back. I mean, like they're on track. There is nothing, there's potential zero loss that we have seen in this 3 days because we are now at 3.5% high in the week. Amit Mudgil, as we were tracking what's been happening in the markets, we also brought some very interesting details for you viewers. Many politicians have a direct investment in the markets. They hold large equity portfolios, and nothing wrong with that across the party divide. But since the Congress leader leveled the allegation of a scam, we went back into his election affidavit to see what was the fate of his portfolio. And my colleague Amit here did some of those numbers. By the way, I just want to tell you for the record, the market value of Rahul Gandhi's listed shares as well as NCDs on the 15th of March was pegged at 4 crore 33 lakhs. This is 4 crore 33 lakhs, and this is apart from 1900 equity shares of Young Indian. And these stocks, Amit, Alkyl Amines, Asian Paints, Bajaj Finance, Deepak Nitrite, Divi's Labs, Dr. Lal Path Lab, Fine Organic, Garware Technical, GMM, HUL, ICICI, that whole list, how has that pack performed in this really volatile week for the markets? So if we compare it with, say, May 31st, before exit polls, this pack has delivered 3.5% return. Okay, and is that on Thursday closing or have you done this on Friday closing? This is as per Thursdays, so we can add more to it. Okay. So, yeah. Okay. Be even higher. So his And portfolio has jumped by 3.5%. Exactly, All that scam exactly. and whatever he said, his own portfolio has actually done well. So I think what Amit was telling was, I think he lost about 3 to 4 lakh. Yes, 4 lakhs overall on in the day of- portfolio on the day of the loss. But next day he gained about 14 lakhs. Another day he gained about 2 lakhs, and today he would have gained even more. अंकुर, अब ये समझाओ कि मार्केट्स में आप भी बहुत काफ़ी नज़र रखते हो मार्केट्स पे, और ये बार बार सवाल आता है कि जी मार्केट में नुकसान हुआ है, और ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अंकुर क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं भारतीय बाजार में, और ये भारतीय बाजार में 80-82% अब भारतीय निवेशक हैं। ये बाजार अब विदेशों का बाजार नहीं है, ये आत्मनिर्भर बाजार है अंकुर। तो आपकी नज़र से पिछले एक सप्ताह में जो ये रोलर कोस्टर हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, आज फ्राइडे समाप्त हुई है, हमने एक बात की और ऐसे लाखों कितने ही पोर्टफोलियो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी पोर्टफोलियो हैं, समाजवादी वालों के भी होंगे। अब तो हमें सब कैंडिडेट्स के इलेक्शन एफिडेविट देखने पड़ेंगे, बट
ऐसा तो नहीं है कि राजनीति और स्टॉक मार्केट अलग अलग है, बट भारतीय आम निवेशक के लिए ये सप्ताह और आज जो क्लोजिंग हुई है, शानदार फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है, आपकी नज़र से ये कैसी रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि जब हम बाय एंड डिप्स की बात करते हैं तो इस बार सब लोग परेशान हैं कि हम बाय एंड डिप्स नहीं कर पाए, क्योंकि सबने सोचा कि शायद मार्केट गिरेगा, एक हफ्ते तक लगातार गिरेगा, फिर कहीं बॉटम बनेगा, कोई सपोर्ट टूटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 सेशन में अगर मैं बीएससी की बात करूं, क्योंकि एनएससी का भी डेटा मौजूद नहीं है, बीएससी में केवल 5 सेशन में पूरा का पूरा मार्केट कैप बीएससी का वापस घूम के वापस आ गया है। सिर्फ 5 सेशन लगे। तो लोगों के पास इस बार मौका नहीं लगा। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला वो अगले दिन एक ही एनएवी मिली, उन्होंने मिस कर दिया। अब लोग सोच रहे थे कि हम ईटीएफ पे दांव खेलें, ईटीएफ पे भी दांव नहीं खेल पाए क्योंकि उनका डिस्काउंटेड पे ऑलरेडी मिल रहे थे। तो इस बार का जो डिटेल था वो तो हक्का बक्का रह गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने अपनी एसआईपी बंद नहीं की। म्यूचुअल फंड का जो डेटा सामने आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि जो कैश कंपोनेंट म्यूचुअल फंड्स के पास था, जो उन्होंने रिजर्व रखा था, वो डिप्लॉय किया। तो मुझे लगता है कि पूरी मार्केट डीआईआई ड्रिवन है और अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि शायद जो कोई बड़ा एक गिरावट आएगी तब शायद मौका मिलेगा, लोग तब भी खरीदेंगे। I think it's FIIs, Shell, which are going to be crying their hearts out. 3 days in a row, they have sold off such massively in this uncertainty in the markets. I think 12,000 odd crore rupees on the day of the Lok Sabha polls, then about 5,500 odd crore rupees, and yesterday about 6,500 तो crore ये rupees. विदेशी It'll क्यों be बेच रहे interesting. हैं? विदेशी क्यों बेच रहे हैं? आपको क्या लगता है? Why are the foreigners selling on the Indian market? सर उनको लग रहा था, दे वर थिंकिंग दैट देयर विल बी मोर फॉल इन द मार्केट्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट्स में उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ रही थी। फ्राइडे को दे वर एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ देयर शॉर्ट्स ऑन 31st ऑफ मई। मंडे को दे कवर द शॉर्ट एंड ट्यूसडे को मार्केट्स फिर से गिर गया। एंड आप देखिए ट्यूसडे के लेवल से मार्केट इज फ्रॉम द ट्यूसडेज लोज, इट इज अब सेंसेक्स इज अबाउट 10% हायर फ्रॉम एज ऑफ टुडे। 70,000 के लेवल से करीबन 77,000 के लेवल पे हम आज खड़े ये हैं। बात ध्यान से दीजिए, 10% का क्लोजिंग हुआ है आज। आप मतलब मंगलवार, जो बहुत बुरी मंगलवार थी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 3 दिन का जो अप मूव है 10%, करीबन 10% का है। और आप सोचिए कि उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा कि अभी जो उन्होंने पोजीशन ले रखी होगी, अभी तो उनके पास खरीदारी करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन बचेगा। एंड ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ऐसी रैली आ चुकी है जहां पे उन्हें और शायद पैसा अपने लॉस कवर करने के लिए। देखिए, हम इस चर्चा पे बिल्कुल एक, जैसे कह सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक कोई सेटअप नहीं, हमने बहुत ज़्यादा कोई तैयारी नहीं की है, हम कोई स्टॉक नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, बाय सेल होल्ड, ये हमारा काम नहीं है। हम तो केवल आपको एक विश्लेषण बता रहे हैं और उस विश्लेषण के आधार पे आने वाली समय में क्या हो सकता है। क्योंकि बड़ी जो एक ये बात आ रही है, और इसको कई और लोगों ने भी इस पर कमेंट किया है, फॉरेनर वर्सेस इंडियन। तो अमित, this foreigner versus Indian story, what would you add to this? Is this a technical kind of decline, or have they lost in the interest in the Indian market, or they just... One has to understand that, like we Indians, we invest in India, but foreigners do have many choices. So in our case, historically, India has commanded a premium over emerging markets, each and every emerging market, be it China also. So now because the China market has fallen so much, they were looking at some tactical, positioning, thinking that in case Indian markets fall, they can come back. But as we have seen, Indian markets, the political uncertainty has, eased, and markets are again at all-time high. ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अंकुर, साक्षी, आप दोनों इस पे बात करें। अंकुर, सबने कहा कि मंगलवार को मार्केट टूटा और इसमें स्कैम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने मार्केट को एक प्रकार से टॉकअप किया। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है कि मंगलवार को अगर मार्केट गिरा, वो शायद इस डर से गिरा कि पुरानी जो सरकार थी उसकी नीतियां बदलेंगी और अब 1 लाख रुपया टकाटक देना पड़ेगा। और हमने कुछ मैथ किया था, एंड व्यूअर्स, यू शुड गो टू द businesstoday.in वेबसाइट एंड चेक दैट स्टोरी आउट. By various calculations, just one scheme alone was 4.5 lakh crore impact on the fiscal burden of the center. If you were to add all the promises,
एंड आपने देखा होगा कि कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लाइन लगी है। जैसे आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके। इसी प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे महिलाएं देश की कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर खड़े हैं कि बताइए वो पैसे कहाँ मिल रहे हैं। 22 लाख करोड़ का एक आंकड़ा था कि इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो द ट्यूसडे सेल ऑफ साक्षी was also out of fear of a negative turn for the fiscal balance, of our fiscal deficit falling further, and therefore borrowing going up, and therefore a complete change in the market. So by what imagination could it have been said that someone was trying to fix it? Is it even possible to fix it? Let's try and go across the I panel. don't think it's possible to fix it. It was just, I mean, you can definitely say that the markets were probably exuberant on that exit poll day, thinking that there will be a 400 par, which was not in their imagination. None of the brokerage houses penciled it. When that thing came in, only then there was that exuberance, which got covered in just the next day. And now you see the markets back on track on fundamentals. RBI has pegged a 7.2% growth rate, and that is again betting big on the India growth fundamentals again. So अंकुर केवल एग्जिट पोल ही नहीं थी। एग्जिट पोल से पहले भी कुछ काफी मैक्रो जो नंबर्स आए थे वो बड़े अच्छे नंबर थे, संकेत अच्छे थे। तो आज जैसे साक्षी कह रही कि आज जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें भी बड़ा अच्छा संकेत दिया गया है ग्रोथ के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में। देखिए सर, उसके बाद कई रिपोर्ट्स आ गई। CLSA की रिपोर्ट आई है, नोमुरा की रिपोर्ट आई है, S&P का जो GDP का अनुमान है वो आया है, RBI की आज नो चेंज की पॉलिसी आई है। आप समझिए कि कोई भी ऐसा नेगेटिव कोई भी ट्रिगर नहीं आया कि पूरा मार्केट में कुछ ऐसा हो। फंडामेंटल इंटैक्ट हैं और यही वजह है कि DIIs खरीद रहे हैं। जहाँ तक FIIs की बात है, देखिए FIIs क्या खरीदता है, वो आके HDFC खरीदता है, वो आके नेस्ले खरीदता है, वो आके बड़े स्टॉक्स खरीदता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हालांकि कोई बाई की रिकमेंडेशन नहीं है, पर ब्लू चिप स्टॉक्स में जो मौका मिला उस दिन जिस दिन ये रिजल्ट आए वो एक अच्छा मौका था। साथ ही मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि इससे जो नुकसान ये कहा जा रहा है कि कोई स्कैम हुआ, स्कैम इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो नुकसान जिन्हें हुआ होगा वो F&O ट्रेडिंग में हुआ होगा। सब लोगों की पोर्टफोलियो, अगर आपने पोर्टफोलियो जल्दबाजी में नहीं बेचा तो वो अगले दिन रिकवर हुआ है, पूरा का पूरा रिकवर हुआ है। ये बड़ा अच्छा एक विषय आया। और एक आखिरी बात जो हम समझना चाहेंगे, और इसमें ये बात जो है कि हमने अगर निफ्टी को देखें उसमें बहुत सारे, और मैं पूरी पैनल में फिर से एक बारी विचार लेने के लिए आऊँगा आपसे शुरुआत करते हुए कि हम देख रहे हैं कि पहले जो सेक्टर थे और अब सेक्टर्स में बड़ी फ़र्क है। अगर हम अपने व्यूअर्स को ये दिखा पाएँ और मेरे साथी आशीष अगर इस पे जूम कर सकें तो आप देखिए आज जो क्लोजिंग हुई है और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप देखिए सारे जो इंडेक्स आ रहे हैं। निफ्टी IT बढ़ा हुआ है, साक्षी, अंकुर, अमित, ये ऑटो चढ़ा हुआ है, और जो PSU बैंक बहुत पिटा था पहले दिन और हमने देखा था कि PSU स्टॉक्स बहुत जा रहे थे, अब ये बड़ा चेंज हो गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो नई सरकार मोदी 3.0 है वो केपेक्स कम करेगी और खर्चा ज़्यादा करेगी। अमित, डू यू बाई इनटू दिस थ्योरी? Not so. Actually, if you look at the government's past, history, this government has, over the period, pushed the capex agenda. PSU stocks. That is why PSU stocks has seen, they have seen this much rally. And going ahead also, obviously there could be, more spending towards consumption, which is the need of our. But why is IT rising? IT is dependent on external revenues. That fundamentally has not changed. The only external input is ECB has cut rates. But does that explain the IT, or is it a defensive play? So yes, ECB cut its interest rates, and there is an expectation that by October, market is factoring in that by October, US Fed will also cut its rates, and so that market is factoring And in. Bank of Canada is already done. Bank of Japan is there. US data also. हाँ. सर मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो RBI का डिविडेंड है, जो 2 लाख करोड़ का डिविडेंड है, बजट आने वाला है, तो फिर ये जो चिंताएं हैं हमारी कि थोड़ा रूरल स्पेंडिंग होगी गठबंधन के लिए, किसी को नहीं, रूरल स्पेंडिंग चिंता होनी ही नहीं चाहिए। देखिए बाजार में जो भी जाता है वो निवेश के लिए, मुनाफे के लिए जाता है, पर आपको देश के बारे
बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। एक बड़ा जो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा निकल कर आया है वो ये डेटा है कि 61 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिन्हें हम कहेंगे रूरल डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो भारत में रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ा है। तो अगर 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान पड़ा है, मल्टीपल रीजंस के कारण पड़ा है, तो कहीं ना कहीं पे रूरल डिस्ट्रेस है। क्या उतनी ही संख्या में टू व्हीलर बिक रहे हैं जो पहले बिकते थे? क्या महंगाई की दर में आरबीआई ने मैनेज किया है, सरकार ने भी मैनेज किया है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए अब 2-1-2.5 साल से, तो लोगों को महंगाई की मार लग रही है, जॉब्स की भी कमी है, तो रूरल इंडिया में एक स्ट्रेस है, लोएस्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड है। तो अब जो आपने बड़ा अच्छी बात जो कही कि ये जो ज़्यादा पैसा दिया है आरबीआई ने शक्तिकांता दास जी को, तो इसमें सवाल ये है, और ये बजट के टाइम हमें पता लगेगा, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस पैसे को पूरा अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पहले आरबीआई ने इसका लगभग आधा अमाउंट प्रॉमिस किया था, डबल दिया है, या अब आरबीआई कुछ समय तक पैसा देके सरकार को एक संकेत दे रही है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, थोड़ा फिस्कल घटाओ, बहुत ज़्यादा फिस्कल कंसोलिडेशन नंबर मत दिखाओ, और थोड़ा बहुत आप रेवेन्यू साइड कुछ एक्सपेंडिचर करो। क्योंकि एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, और अगर हम पिछले 2-3 साल का कोविड के बाद उससे पहले का इतिहास नहीं देखें तो कई सोशल सेक्टर स्पेंड्स जो हैं भारत सरकार के, उन पे कहीं ना कहीं पे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, और वो पैसा अगर रूरल इकोनॉमी में खर्चा होता है कहीं ना कहीं पे वो मार्केट पे भी प्रभाव लाएगा, क्योंकि ज़्यादा साबुन, ज़्यादा तेल, खाने का सामान, मोटरसाइकिल, टमटम, गाड़ी सब बिकेगा। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और सर मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में वो जो कर्ज माफ़ी वाला बर्डन आता था पीएसयू बैंक्स पे, वो नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि एग्री सेक्टर में जो हर महीने जो पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, क्योंकि जो जिस तरह का मैंडेट है या पॉलिटिकल कंपल्शन है, तो सरकार को इस दिशा में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Prime Minister Narendra Modi, in his first speech at the parliamentary sort of party meeting of the National Democratic Alliance, has given us good indicators of the kind of priorities that he will follow. I actually recall the words that he said about the kind of mandate that has been received, and seemed to be suggesting, without over-interpreting what the Prime Minister said, seemed to be suggesting that he realizes and sees the data, and we can therefore expect some sort of changes. Now, who will be the finance minister? Yeah. What will be the composition of the cabinet? That will pan out in the next 2-3 days. But एक बात आखिर में बड़ी साफ साफ है, बाजार चढ़ता है एडवांस की बेसिस पे और ऊपर नीचे होता है इवेंट के दिन। ये एक बाजार की सच्चाई है। बाजार में पैसा बनाना आसान नहीं है, ट्रेडिंग बड़ा जोखिम भरा खेल है, लंबे समय तक इन्वेस्ट करके बैठने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, किसी बड़े वॉलेटिलिटी के दिन पे बहुत हिम्मत चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए कि आदमी उसको बर्दाश्त कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल जब भी निवेश करना चाहें लालच से बचें, डेटा को समझें और बहुत दिमाग लगा के कोई भी स्टेप लें। और म्यूचुअल फंड में लोग बैठे हुए हैं आपके लिए दिमाग लगाने के लिए, और शायद निवेश करके आमदनी बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा तरीका है। बट आखिर में फिर से एक बार ही दोहरा रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन, नो टिप, ओनली प्योर इंफॉर्मेशन। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए